Because of the sudden increase in suicides in Kota a few months ago, the Kota administration started the Hope Helpline so that students could beat the stress by counselling. Operators in the helpline say this is a means to counter panic attacks and depression in students. Those managing the helpline say they are getting a good feedback and are satisfied working closely with those distressed. There are so many people, my family member, they start questioning me. The gravity of the situation in Kota vis-a-vis suicides can be gauged from the fact the Hope Helpline, which was shut down in 2014 due to paucity of funds and not many hands, has once again been revived. Saving coaching institute students from depression and suicidal tendencies has become easier this way. The Hope Helpline has always been the hope for coaching students of Kota for around 5 years before its closure a year ago. It was launched during the tenure of the then DC of Kota. या यहाँ पर बच्चे डिप्रेस में होते हैं तो उनके जो है काउंसलिंग की जाती है, उनको रिलैक्स किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, नॉट मतलब ये नहीं है कि तुम मर जाओ या फिर सुसाइड कर लो, ये कोई हल नहीं होता है। फेस प्रॉब्लम का जो है फेस अच्छे से करना चाहिए, ये बताया जाता है। Initially, the helpline was run with the support of the district administration and coaching institutes, but later it started facing problems due to lack of counsellors, financial support and administrative support. It eventually closed down in December of 2014. हेल्पलाइन का फंडा ये होता है कि इसके प्रिंसिपल ये होते हैं कि जो सुसाइड कर रहा होता आदमी, वो अनकॉन्शियसली खुद को नहीं ख़त्म करना चाहता, वो अपनी सफरिंग को ख़त्म करना चाहता है। तो 80% लोग सुसाइड जो करने जाते हैं, सुसाइड पॉइंट पे हेल्प चाहिए, उनको न्यूट्रल आदमी की हेल्प चाहिए और वो उस हेल्प को अवेल करना चाहते हैं। तो उस साइकोलॉजी के सिद्धांत पे ये चलती है। तो उसकी वजह से वो कॉल करता है, ये न्यूट्रल नंबर होता है हमारा, तो इस पे वो कॉल करता है और कॉल करता है तो काउंसलर्स को मैनेज करते हैं और उस पॉइंट पे उसको मैनेज करके उसको अवॉइड हो जाए, जिससे वो पॉइंट, और फिर दूसरे दिन बाद में हम काउंसलिंग के लिए भी उसको बुला लेते हैं। वैसे ये हमारी फर्स्ट फेज़ है। सेकेंड फेज़ में वैसे जो विदेशों में चलती है उसमें फ्लाइंग स्क्वाड भी एक होता है जीपीएस के साथ में, वो काउंसलर उनको बातों में रखता है और वो सुसाइड पॉइंट तक पहुंच जाता है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स का हमने ऐसे भी किया था जो पास में रहते थे, हमारी काउंसलर्स वहाँ गई, वो एक लड़की थी, उसको वहाँ से लेके आ गई। After several months of efforts, the administration and the Hope Society, which was earlier running the helpline, once again revived it. The Hope Helpline, situated in Jawahar Nagar area of Kota city, is attending to around-the-clock calls from students. Leading psychiatrist in Kota and coordinator of the helpline, Dr. M.L. Agarwal, said the helpline is helping an average of 2 to 3 student calls daily. Complaints from students are mainly related to stress, study pressure, emotional issues, psychological issues and of course fees refund. गोरखपुर के थे रजत पटेल जी, तो उन्होंने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उन्होंने इतना प्रेशर ले लिया था कि उन्हें वो नींद ही नहीं आ रही थी 3 महीने से। इतने परेशान हो चुके थे कि वो मतलब एक दिन तो इतना पैदल चले कि उनके पाँवों में जो खून निकलने लग गया, फिर भी उनको नहीं नींद आई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं शायद इतना परेशान हो चुका है, मुझे नींद नहीं आएगी तो मुझे मतलब हो जाना ही, मेरे को सुसाइड कर लेना ही बेहतर होगा। तो उन्होंने जो है सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, तो सर के वो पास आए, तो सर ने फिर उनको बहुत देर तक काउंसलिंग की और फिर उसको अटेम्प्ट किया, फिर अच्छी तरह उनको ट्रीटमेंट दिया। 3 दिन उनको एडमिट करने के बाद वो अच्छे से बेटर होके गए, यहाँ से खुश होके गए। उन्होंने बोला अब मैं कभी लाइफ में जो है सुसाइड करने का नहीं सोचूंगा। The Helpline Centre has prepared a detailed manual with 60 questions frequently asked by students in distress. We know how it was, Danny and The counsellors have been put through intense mock call sessions to learn the art of patient listening. never be able to show that measuring in this way or According to the National Crime Records Bureau report of 2014, Kota saw an increase in student suicides by over 61%. 10th क्लास तक इतनी कोई पढ़ाई खास लगती नहीं है, यहाँ पर आते एकदम से बढ़ जाता है, तो वो बच्चा मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं अपने पाथ से, इसलिए वो अपने आप को इतना फील करता है डिप्रेस्ड। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो इवन आपको हर दिन मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसा करिए, आपको हर तरीके बताएंगे, लेकिन अब ये रहेगा कि अगर आप सोच ही लेंगे कि मुझसे हो ही नहीं सकता, तो फिर तो कोई कितना समझा ले, आप नहीं कर पाएंगे।